Hello and welcome to Deep Sea for Civil Services. As many of you have demanded for the videos on other topics in the exam of CGPDTM patent examiner. So as there is no time left, hardly 15-16 days, I am providing here the chemistry section of the general science. These are my notes which have questions from various exams which I have prepared for my exam. So here I am providing, and since the exam is being held after so long, from 2018 to 2023, there has been a gap of 6 years, so 5-6 years. So no one knows what will be the pattern of the paper exactly. Based on the previous year paper, I think these topics will be important for this exam. Since this is general science, so the general things which are useful in our day-to-day life will be the focus area, I think so. And these are the notes, please go through it. First one is alloy. What is alloy? Alloy is a mixture of uniform mixture of more than 2 chemical elements, and the basic property is that among those elements at least one should be a metal. अगर कोई metal नहीं होगा उसमें तो वो alloy नहीं कहलाएगा. Alloy होने के लिए at least there should be one metal. And these are some important alloys and their components. I think this is the most important area. There can be a question that brass is made up of copper and zinc. Steel is iron and carbon. Then stainless steel, this is steel plus chromium and nickel. Components of solder are lead and tin. Likewise, component of bronze are copper and tin. And Duralim component are aluminium, copper, magnesium and manganese. German silver. So its name has silver, but it is actually not a silver. Silver नहीं होता. German silver has its component copper, zinc and nickel. Next is the question I have seen in many exams which have a component of general science. What is amalgam? Amalgam is mercury with other metals. Mercury को जब हम किसी other metal के साथ मिला देते हैं तो उसको amalgam बोलते हैं. So amalgam is a mercury metal mixture. Almost all the elements form amalgam with mercury except iron. So this exception becomes important. Question can be asked that which metal doesn't form amalgam with mercury? So this is the iron. आयरन जो है वो अमलगम नहीं बनाता है. ब्लीचिंग पाउडर जो सबके घर में यूज होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaClO2. तो क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. व्हाट इज हाइपो? हाइपो इज सोडियम थायोसल्फेट. One phenomenon is that brass is an alloy. Brass gets fade color in air. तो एयर में रखने पर धीरे धीरे ब्रास का कलर जो है वो फेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो ब्रास से रिएक्शन कर लेता है और उसका कलर फेड कर देता है. नाउ कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एनी जनरल साइंस पेपर. तो कार्बन हैज एलोट्रॉप्स ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिनिस्टर फुलरेन विच इज C60 को बोलते हैं बकमिनिस्टर फुलरेन. नाउ ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? प्लम्बागो. प्लम्बागो का जो मीनिंग होता है वो स्टिक दैट लेफ्ट मार्क, मतलब जो छड़ी जो मार्क छोड़ती है उसको प्लम्बागो बोलते हैं. जो पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, मतलब पेंसिल के जिस हिस्से से हम लिखते हैं उसको वो ग्रेफाइट का होता है. ग्रेफाइट का जो केमिकल शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है. एंड ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल कार्बन फॉर्म अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. जब स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये कौन सी कंडीशंस होती हैं स्टैंडर्ड? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड अदर कंडीशंस. तो इसके अंदर जो ग्रेफाइट है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है. ये बहुत ही बार पूछा गया है यूपी के एग्जाम्स में स्पेशली. सो जनरल साइंस में है. अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेफाइट जो होता है वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है. ग्रेफाइट ड्राई लुब्रिकेंट का भी काम करता है. कहाँ पे करता है? वो हैवी मशीन्स में लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट जैसा काम करता है. ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर भी होता है. नाउ डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है. डायमंड का जो यूज कहाँ कहाँ होता है? डायमंड का यूज होता है ग्लास की कटिंग में, ड्रिलिंग में, ग्राइंडिंग में और अदर हार्ड मटेरियल्स की भी कटिंग में यूज होता है. ग्लास पर लिखने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? ग्लास पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है. डायमंड के साथ साथ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का भी यूज किया जाता है. हम देखते हैं ना ग्लास के जो मटेरियल बहुत सारे लोगों के घर या दुकानों में ग्लास पे ड्रिल करके या कट करके लिखा गया रहता है वो डायमंड से यूज. और जो हम जो ग्लास स्पेक्स जो लोग पहनते हैं, चश्मे की कटिंग भी डायमंड के बेसिस से होती है. कैरेट क्या होता है? कैरेट एक मास की यूनिट है जो डायमंड के वेट को मेजर करने के लिए यूज होती है. तो ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन बनता है, ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनता है कि कैरेट, डायमंड का वेट कौन सी यूनिट में मेजर किया जाता है. तो डायमंड का वेट जो है वो कैरेट में मेजर किया जाता है. एंड 1 कैरेट इज इक्वल टू होता है 200 मिलीग्राम. 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम. बकमिनिस्टर फुलरेन पे आते हैं जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C60. इसका स्ट्रक्चर जो होता है केज लाइक होता है, फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है. इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दें.
ट्यूब फुलरिन जो है नैनो ट्यूब का एक काम कर रहा है, आजकल काफी ज्यादा यूज में हो रहा है। तो ट्यूब फुलरिन में पूछा जा सकता है कि किस चीज का बना होता है। ट्यूब फुलरिन कार्बन-60 मतलब बकमुनिस्टर फुलरिन होता है। सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस सॉलिड CO2। ये यूज होता है फूड को प्रिजर्व करने में, फ्रोजन फूड्स को, स्पेशली जो आजकल आ रहे हैं मार्केट में कि मतलब उनको रख दीजिए फ्रोज करके और कभी भी इंस्टेंट निकाल के बना लीजिए। लाइक नगेट्स होता है चिकन में नगेट्स, तो वो उसको फ्रोज करने के लिए ड्राई आइस का यूज होता है। इसको सॉलिड से ये सब्लिमेट होता है। सब्लिमेट मतलब क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्टली वेपर बनता है, बीच में लिक्विड या गैस नहीं बनता है, सीधे वेपर बन जाता है। और एक सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी और किसमें पाई जाती है? कपूर में जो होता है उसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कपूर पूजा के टाइम पे यूज होता है आरती करने के लिए, इन दैट कपूर। कोल के ये 4 वैरायटी होते हैं। इसमें ज्यादा तो नहीं ध्यान देना, बस नाम याद कर सकते हैं कि 4 वैरायटीज कौन कौन सी। कोल भी एक्चुअली होता क्या है? कार्बन होता है, इसलिए ये कार्बन सेगमेंट में लिख दिया है मैंने। लिग्नाइट, सब बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट कोल। द बेस्ट वैरायटी कोल इज एंथ्रासाइट कोल, जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो मोर देन 80% होती है। तो विच इज द बेस्ट वैरायटी कोल? दैट इज एंथ्रासाइट कोल। ये इंडिया में कहाँ पाया जाता है? इंडिया में ये ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है स्पेशली, और इसलिए जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा फ्रेजाइल रीजन है, तो इसका हम माइनिंग नहीं करते हैं। ये हिमालयन रीजन में है, तो वो वहाँ की इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को बहुत डिस्टर्ब करेगा। और हिमालय जो है वो अर्थक्वेक प्रोन, हाईली अर्थक्वेक प्रोन है। जम्मू एंड कश्मीर जोन 5 में आता है। जम्मू एंड कश्मीर जो है अर्थक्वेक पे जोन 5 में आता है, तो हाईली अर्थक्वेक प्रोन, सो माइनिंग ऑफ द मिनरल्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन दैट रीजन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरोप्लेन के टायर्स में कौन सी गैस यूज होती है? तो नाइट्रोजन गैस एरोप्लेन के टायर्स में यूज होती है। और किस लिए यूज होती है? फॉर प्रिवेंटिंग व्हील फ्रॉम कैचिंग द फायर। जब वाइल लैंडिंग, जब लैंड करता है तो इतनी स्पीड होती है कि फ्रिक्शन के कारण आग लग सकती है, ड्यू टू फ्रिक्शन। जब दो चीजें आपस में रगड़ती हैं तो चिंगारी तो निकलती ही है, तो सेम कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो अप्लाइड हियर। और उस आग को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग उसके टायर्स में कर दिया जाता है। जो बैलून्स होती हैं वो उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? बिकॉज हीलियम इज लाइटर इन वेट एंड ऑल्सो इट डजेंट फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सर विद एयर। मतलब ये जलता या मतलब वो इसका एक्सप्लोजन नहीं होता, ये फूटता नहीं, सॉरी जो भी है। टीयर गैस में क्या यूज होता है? टीयर गैस में क्लोरीन यूज होता है। एक क्वेश्चन होता है कि विच इज ओनली नॉन मेटल विच इज एट रूम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन एक इकलौता नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। इसका यूज जो है पेन किलर में किया जाता है। फ्लोरेसेंट लैंप के ट्यूब में जो होता है कौन सा गैस यूज किया जाता है? मरकरी वेपर प्लस आर्गन। और आर्गन की जगह और कौन कौन से इनर्ट गैसेस, और आर्गन क्या है? एक इनर्ट गैस है, तो इसकी जगह हम जेनॉन या नेऑन या क्रिप्टॉन यूज कर सकते हैं। ये सारी इनर्ट गैस होती है। ट्यूबलाइट फिल्ड विद मर्करी वेपर एट लो प्रेशर। ट्यूबलाइट में भी मर्करी वेपर का यूज होता है। ये लिटमस टेस्ट से कैसे क्या जो आउटकम होता है उससे क्या इंडिकेशन मिलता है? अगर हम ब्लू लिटमस ले रहे हैं और उस पर एसिड डालते हैं, रेड हो जाता है। और ब्लू लिटमस पे अगर बेस डालेंगे तो वो रेड लिटमस पे बेस डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ये लिटमस टेस्ट की पहचान होती है। तो ब्लू लिटमस कौन से केमिकल के अंडर रेड होता है? तो एसिड के अंडर रेड हो जाता है। नाउ लाइम वाटर इज सोल्यूशन ऑफ, लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर सोल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाउ दीज आर नीला थोथा या ब्लू विट्रियल किसे बोलते हैं? ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा या ब्लू विट्रियल बोलते हैं, जिसका यूज जो होता है एंटी फंगल जैसा यूज होता है। पानी के टैंक में फंगस ना होने पाए उसमें ब्लू विट्रियल डाला जाता है। एप्सम क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम बोलते हैं, MgSO4 एप्सम सॉल्ट होता है वो। और कॉस्टिक सोडा जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम जो है वो कॉस्टिक सोडा है। बेकिंग पाउडर जो खाना बनाने में यूज होता है, उसी का यूज फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाले में भी बेकिंग पाउडर का यूज होता है। फ्रूट्स, फलों को जो पकाने के लिए एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज्ड टू प्रोड्यूस सोडियम सिलिकेट। सोडियम ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। आयोडाइज्ड सॉल्ट में जो होता है क्या क्या पाया जाता है? सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडेट। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिस जो हाथ पैर टूटने पे भी लगाया जाता है, उसमें अगर सोडियम क्लोराइड होता है तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सेटिंग बढ़ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का।
फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करने के लिए हाइपो का यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हाइपो का यूज किया जाता है। पॉटरी में जो शाइनिंग आती है, पॉलिश आती है, उसके लिए जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। सिगरेट का जो लाइटर होता है, मतलब जनरली जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है लाइटर में। मेथेन, ये CH4 क्या? मेथेन का केमिकल फॉर्मूला है। CH4 के डिकम्पोजिशन से प्रिंटिंग इंक बनता है। एथेफोन जो होता है, ये एथ्रियल भी इसको बोलते हैं, ये फ्रूट राइपनिंग में यूज होता है। क्यों यूज होता है? अभी हमने पहले जो देखा कि एथिलाइन यूज किया जाता है, एथिलीन फ्रूट को पकाने में, तो इस एथेफोन से एथिलीन प्रोड्यूस होता है, फिर वो फ्रूट राइपनिंग का काम करता है। कैल्शियम कार्बाइड भी यूज होता है, लोग बोलते हैं ना कार्बाइड लाइए फलों को पकाना है, तो फ्रूट्स को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड भी यूज होता है। जो वेल्डिंग गैस होता है उसमें ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन होता है। बोरिक एसिड का यूज जो होता है फूड प्रिजर्वेशन में होता है। इसका यूज जो है ये फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन की इंडस्ट्री में भी होता है। So these are few important topics of chemistry. I will be coming with the physics and other sections of chemistry also. Thank you so